Assalamu alaikum. We are going to start with exercise 7.2, but before that, we are going to look on to the concept a little bit. So we have circles, and we have to find the circumference of a circle. Circumference of a circle means, in other words, अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट का अगर मैं कहती हूँ ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसका मैंने पेरीमीटर निकालना है, this length, this length, this length, and this length combined will give us a perimeter. Similarly, in circle, we do not have a particular side. So the entire length of this circle is called circumference. So there is a particular formula for finding the circumference of a circle is pi into diameter. Or it can also be when you write a diameter ka d, pi into d. Or we all know that diameter is equals to 2 times the radius. सो वी कैन जहाँ पे डी लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग इसको भी इनपुट कर सकते हैं तो 2 pi r. दिस इज द मोस्टली यूज टर्म जो कि 2 pi r लिखी जाती है, बट इफ़ यू आर यूजिंग पाई डी और इफ़ यू आर यूजिंग 2 pi r it does not differentiate or like it does not make any difference. It's the same thing. Okay, and then to find the area of a circle we have to count this. like अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से इसको ओपन करके इसका मैप बनता है एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया. बट फॉर नाउ इन दिस क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज यू आर particularly interested in knowing the final formula, that is pi r square. And if we look at the area of circle, यहाँ पे उसने जो हमें दिखाई हुई एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास हाफ इंटू 2 pi r यानी कि जो बाहर वाली लेंथ है उसको मल्टीप्लाई किया है r से, इस लेंथ से, and then like this is the height or the r. So that's the basic एरिया का जो फॉर्मूला है हमने उसी को इम्प्लीमेंट किया है. बट क्योंकि ये इससे कट हो जाता है, 2 से कट हो जाता है और ये r से मल्टीप्लाई हो जाता है, so we are left with pi r square. So that's what has been commonly taught in the classes as well. Coming to the questions now, we have to start with exercise 7.2. We have to calculate the area and circumference in each of the following. For the first question, I'm going to do it with you, and afterwards I will do that and then I will explain them afterwards. So firstly हमें यहाँ पे देखना क्या है, जो ये हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ये सर्कमफेरेंस जो आउटर बाउंड्री है. सर्कमफेरेंस कहीं भी मैं वर्ड यूज करूंगी तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में आउटर बाउंड्री. ठीक है, जो आउटर बाउंड्री को टच कर रहा है और जो सेंटर को टच कर रहा है, दिस इज अ रेडियस. तो हमारा रेडियस क्या है, 4 मीटर्स. अब हम लोगों ने एरिया का फार्मूला लिखेंगे. एरिया का हमारे पास फार्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर. एंड अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर्स के अंदर पाई देखें, so some calculators have it somewhere else, but the calculator I have right now, I have guessed you FX991ES plus, and this is allowed in O levels. I am not sure about IGCSE, but I am using it for now. So pi r square इस तरह के कैलकुलेटर के लिए क्या है, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाकर बिल्कुल मिडल वाला, दिस इज अ कैलकुलेटर, तो यहाँ पे शिफ्ट है और यहाँ पे बिल्कुल सारे जो यहाँ पे 5 बटन हैं और उनके यहाँ पे इस वाले बटन को क्लिक करना है. ठीक है, द मिडल वन, शिफ्ट दबाकर उसको क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ पाई, अ स्मॉल पाई. And then you are going to multiply pi with, or you can also write it as 22/7, but usually we use and answer in terms of pi, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है. तो पाई हम लोग यूजुअली ये यूज़ करते हैं. आर स्क्वायर हमारे पास 4 मीटर है, तो हम लोग पाई इंटू 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज बेसिकली 16, so we have to pi multiply by 16. We are going to get 16 pi, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 50.265. तो हम इसको लिखेंगे 50.27, और we can even write 50.3 as well meter square. For finding the circumference हमारे पास फॉर्मूला है 2 pi r वाला. तो 2 pi r फॉर्मूला से हम लोग यहाँ 2 into pi और हमारे पास r रेडियस क्या है 4. So we are going to get 8 pi, and 8 pi is 25.13 meters. That's the circumference. अगर अब मैं circumference को वो पाई डी वाले फॉर्मूला से करके दिखाती हूँ,
तो यू विल सी कि ये बिल्कुल सेम है। अब पाई डी है, अब हमारे पास डायमीटर नहीं है, तो हमें यहाँ पे डायमीटर को अलग से कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। हमें पता है डायमीटर 2r होता है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डायमीटर 8 आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट 8 इंटू पाई इंटू 8 या 8 पाई, तो फिर उसके बाद 25.13 आया आंसर। मेथड वही है, पर यहाँ पर हम लोगों ने उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया इस जगह पे, पर यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेटली उसको किया है। So that's the only difference that we are making here. Now let me continue with the B and the rest of the parts and then we can discuss it afterwards. Alright, for question number part B, we can see अब हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं है, हमें डायमीटर यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग अब यहाँ पे पाई डी अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फीसिबल होगा rather than अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज़ करें। पाई डी यूज़ करके अब हम यहाँ पे पाई है और हमारे पास यहाँ पे 3.1 है, and we can simply multiply it and we will get our final answer. 3.1 multiplied by pi, we're going to get 9.73 9.738 millimeter square, which is going to be 9.74 millimeter square. Okay, मेरे पास आगे 8 है. Yeah, so now let's move on to circumference. For unit है circumference का formula होता है to wait. I actually made a very big blunder that this is going to be circumference because I actually confused the formulas. Let me actually write it down so that I do not confuse them. Area का formula होता है pi r square and that is as it is. और circumference का formula होता है 2 pi r और pi d. और अभी मैंने area लिख के ये वाला formula लगा दिया. So that's a mistake that's usually happened and even I made it at the moment. So please make sure that you write down the formulas first. Area is equal to pi r square and we have to find radius. So what we are going to do is हम लोग क्योंकि हमारे पास diameter है and उससे हम लोगों ने radius निकालना है. We know 2 into r is diameter. अब radius निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d divided by 2, यानी कि we will have 3.1 divided by 2 and whole square. So we are going to get 3.1 divided by 2 whole square multiplied by pi. The answer is going to be 7.547. 7.547 है तो 7.55 हो जाएगा millimeter square. And now for the circumference, this time we are going to use the pi d formula, and using that we are going to get pi into 3.1. And what was the answer previously? 9.738. Yeah, so it will become 9.74 millimeter. That's how you will do part B. Now I did part C and part D for you, and we can see part C को अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास diameter given था, तो एरिया का पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने निकाला, पाई 0.8 डिवाइड बाई 2 उसी के अंदर हमने स्क्वायर निकाल लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया. सर्कमफेरेंस के लिए हमने पाई डी यूज़ किया और हमारे पास आंसर आ गया. डी पार्ट में अगर आप देखें हमारे पास डायमीटर नहीं गिवन, रेडियस गिवन है. स्क्वायर तो हमने एरिया तो हमने वैसे ही निकाल लिया. सर्कमफेरेंस निकालने के लिए दिस टाइम मैंने पाई डी के बजाय 2 pi r formula use किया, which is the equivalent formula, but I used it because we were given the values of radius. So it was easier to get the final answer. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 से कैंसिल हो रहा है और पाई हमारे पास as it is आ रहा है, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया. All right, for part E, we can see अब हमारे पास ये रेडियस था, तो अब मैंने यहाँ √2/2 लिखा है. मेक श्योर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये रेडियस है, डायमीटर है, तो हम लोगों ने किस तरह से फॉर्मूला को एडजस्ट करना है. और ये भी याद रखना है कि एरिया जब निकाल रहे हैं तो किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए और सर्कमफ्रेंस में सिंपली किलोमीटर आएगा. एफ पार्ट के लिए हमारे पास रेडियस गिवन था और उसी को बिल्कुल सेम मेथड से हमने सॉल्व किया. सर्कमफ्रेंस के लिए हमारे पास यहाँ पाई से कैंसिल हो जाएगा. We will have 2 into 2, that is 4 meters. So the answer will be exact over here. Alright, for question number 2, the question says calculate the area of the shaded region in each case. अब हम लोगों ने इन shaded regions का area calculate करना है. मैंने A और B इसलिए solve करके दिए हैं ताकि हम लोग के पास एक reference images हो, ताकि हम लोग कुछ discuss कर सकें. अगर मैं एक क्वेश्चन को देखूं तो ए पार्ट के अंदर हमारे पास एक बिगर सर्कल हमें गिवन है, एक बिगर सर्कल गिवन है जो कि शेडेड है.
अब एक और उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है जो कि ओमिटेड है, जिसको हमने काउंट नहीं करना। तो हमें सिर्फ शेडेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुल शेडेड माइनस अनशेडेड, ठीक है, शेडेड माइनस अनशेडेड यानी कि सर्कल माइनस स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला, और लेंथ इनटू ब्रेथ इसका स्क्वायर का फॉर्मूला। और अब हम लोगों ने यहाँ से रेडियस जो है इसके अंदर पुट करना। तो रेडियस के लिए अब हमारे पास, अगर हम लोग को अब यहाँ पे देखना है, ये उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दी है, यानी कि एक सर्कमफेरेंस टच जहाँ पे हो रहा है वहाँ दूसरे सर्कमफेरेंस तक इस पूरे की वैल्यू दी है। अगर वो हमें देता है वैल्यू क्वेश्चन के, हमें यहाँ तक वैल्यू देता इतनी हाफ, यहाँ पे हमें 9 सेंटीमीटर देता तो वो भी सफिशिएंट होती, पर यहाँ पे वो हमें डायमीटर दे रहा है जो कि 18 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रहा है, तो हम लोगों ने उसको जो है डिवाइड ज़रूर करना है, ठीक है। और उसका फिर होल स्क्वायर आएगा, और माइनस हमने किससे किया, इस स्क्वायर से, क्योंकि उसने हमें बताया ये सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर ही होगा, इसलिए 2 into 2 कर दिया। अब इसको अगर मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्रेस करके लिखूँ, जो कि मैंने थोड़ा सा इतने ज़्यादा स्टेप्स में मेंशन नहीं किया, तो मैं उसको लिखूंगी 18/2 9 हो जाएगा हमारे पास, और इसका स्क्वायर भी अभी, ठीक है, 9 स्क्वायर पाई माइनस 2 into 2 विल बी 4, तो 9 स्क्वायर 81 पाई माइनस 4। आप इसको ऐसे कैलकुलेटर में लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, यही आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई टू राइट ऑल ऑफ दी स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे ए पार्ट में नहीं लिखे, मैं बी पार्ट में लिख के बताती हूँ, बी पार्ट में मैंने लिखे हैं और मैं बताती हूँ। ये हमारे पास फुल एक स्क्वायर था, और यहाँ पर शेडेड माइनस अनशेडेड किया, शेडेड हमारे पास ये चीज़ थी, और एक स्क्वायर के अंदर से हमने सर्कल को माइनस किया। पहले हम लोगों ने जो चीज़ लिखी है हमने पहले उसको लिखना है, याद रखना है कि इसको ब्रैकेट्स में ही हम हमेशा इनक्लूड करना है, वरना प्रॉब्लम आएगी। और 8 into 8 हमारे पास स्क्वायर हो गया। पर अगर हम लोग देखें हमें कहीं रेडियस नहीं दिया, पर बेशक हमें उसने रेडियस नहीं दिया, पर उसने हमें डायमीटर दिया है, ये लेंथ जो है ये डायमीटर की इक्वल है। हाँ, अगर होता हमारा जो सर्कल है फॉर एग्जांपल वो इतना सर्कल होता, और ये बाहर सारा कलर्ड है, शेडेड है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो फॉर एग्जांपल ये है, और इस तरह से सर्कल बना हुआ है। अब इसका जो ये वाली लेंथ है डेफिनेटली वो रेडियस के बराबर नहीं है या डायमीटर के बराबर नहीं है, तो वो इस केस में वो हमें यहाँ पे स्पेशल थोड़ी सी लेंथ कोई ना कोई बताएंगे, या डायमीटर बताएंगे या रेडियस बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये 8 सेंटीमीटर ही है, तो हमने 8/2 किया। 8 into 8 64, 8/2 is 4, 4 square is 16 pi, 64 minus 16 pi is equal to 13.77 centimeter square. Similarly we will do the rest of the parts. अब इवन अगर हम लोग पार्ट इसका सी देखें, उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो नई चीज़ आ रही है, लाइक नई चीज़ इन द सेंस कि यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, दो हमारे पास मिक्स्ड हैं, तो इसके लिए हम लोग फिर से शेडेड माइनस अनशेडेड करेंगे। जितनी दफ़ा अनशेडेड आएगा उसको हम लोगों ने सिर्फ माइनस करना है। पर अब हमने इस चीज़ को याद रखना है कि हमने ब्रैकेट्स में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसको माइनस करना है एक सर्कल से और एक और स्मॉलर सर्कल से। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं, 12 into 7 माइनस पाई इंटू, अब अगर हम लोग ये वाला सर्कल ले रहे हैं तो इसके अंदर रेडियस क्या है 2 मीटर, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पाई इंटू ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास 12 into 7 is 84, 84 minus 2 square is 4, 4 pi minus 1 square is 1, तो यहाँ पे 1 pi आएगा, तो 84 minus 3 pi, और फिर हम लोगों ने इसका आंसर आएगा, मैं कैलकुलेटर पे चेक करती हूँ, 84 minus 3 pi we are going to get, मेरा क्यों नहीं चल रहा, 84 minus, yeah, so I'm going to get, एक्चुअली हम लोग क्योंकि ये वेरिएबल्स नहीं है हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, हम इसको ये नहीं लिखेंगे 84 minus 4 pi minus pi, हम इसको मतलब 3 पाई नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और हमारे पास आंसर आएगा 68.29, लेट कॉल इट 3, ठीक है, एंड मीटर स्क्वायर, सिर्फ मीटर स्क्वायर, दैट्स इट फॉर दिस सी पार्ट। नाउ फॉर द पार्ट डी एंड पार्ट ई,
द सिमिलर कॉन्सेप्ट विल बी यूज। हमारे पास शेडेड ट्राइंगल है और उसके अंदर हमारे पास एक सर्कल हमारे पास गिवन है जो कि अनशेडेड है। हम लोगों ने हाफ बी एच फॉर्मूला लगाया एरिया इसका और फिर सर्कल का लगाया, हाफ बी एच माइनस पाई आर स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15। और इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे डायमीटर गिवन था तो 5/2 कर दिया और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ई पार्ट के अंदर हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जिसका रेडियस है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हाफ ए प्लस बी इंटू एच, यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 153.96 आंसर आया है। Alright, for part F, we have a whole shaded area. We do not have any unshaded part. So we are just going to add all of these. Because this shape is a mix of simple shapes, तो हम लोग उनको separately add करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वन भी सेमी सर्कल है, फिर हमारे पास रेक्टेंगल और फिर सेमी सर्कल है। तो इसी तरह मैंने उसको लिखा। अब हमने एरिया ऑफ अ सर्कल तो पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पर सेमी सर्कल का एरिया नहीं पढ़ा हुआ, उसका कुछ भी नहीं है। लाइक सेमी मीन्स हाफ, राइट? तो हम लोगों ने उसका सिर्फ हाफ निकाल देना है, यानी कि हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन गया और यही एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे भी पुट किया। फिर मैंने पाई आर स्क्वायर, अब मेरे पास ये गिवन है और ये गिवन है। तो अगर मेरे पास ये लेंथ गिवन है इसका मतलब है ये वाली लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ हमारे पास रेडियस होगा जो कि 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होगा। यू कैन आइदर पुट 6 सेंटीमीटर डायरेक्टली, पर मैंने यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2 करके किया और फिर मैंने उसको हाफ इंटू पाई इंटू 12 होल स्क्वायर और फिर वो 6 स्क्वायर बन गया, 6 स्क्वायर 36 बन गया, 36 डिवाइड बाई 2 18 पाई बन गया। तो इस तरह से ये बना। इसी तरह ये वाला जो अगर हमारे पास सेमी सर्कल वाली जो लाइन है ना, मैं दिखाती हूँ सेमी सर्कल की। एक ये वाली चीज़, मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए, इसकी विजिबिलिटी कम होगी। ओके, तो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये सारे एक ही है और ये वाले स्टेप्स भी जो हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और इसी तरह मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना हमारे ये रेक्टेंगल की, तो इस पर मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ लगाया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर आंसर लगाया और वही आंसर कंटिन्यू करके एंड पे मैंने इसको कैलकुलेटर में लिख दिया और मेरे पास ये आंसर आ गया। इट वॉज एज सिंपल एज दिस। Alright, for question number 3, we have to read this statement. It says the diagram shows a plan for a rectangular garden with a circular pond. तो हमारे पास ये एक rectangular garden है, उसके अंदर एक pond है, and the part of the garden not covered by the pond is to be covered by grass. One bag of grass seed cover 5 square meters of lawn. Calculate the number of bags of seed needed for the work to be done. So in briefly उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये एक लॉन है और उसके अंदर हमारे पास ये एक गार्डन है और इसके अंदर एक पॉन्ड है और ये पॉन्ड इतना सा है और बाकी सारे ग्रास है, ठीक है। एंड अगर हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ सीड्स जो हैं उनके बैग्स ऑफ सीड्स जो हैं वो हमने इंसर्ट करने हैं, लाइक डालने हैं जो भी है। तो आपने बताया कितने नंबर ऑफ बैग्स डाल सकते हैं। उन्होंने एक लाइन हमें यहाँ दे दी है कि एक बैग जो है वो कवर करता है 5 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लॉन, ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर कवर करता है। अब हम लोगों ने पहले क्या करे थे, शेडेड माइनस अनशेडेड, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योंकि दोनों शेडेड है, पॉन्ड अनशेडेड नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिक्वायर्ड माइनस नॉट रिक्वायर्ड। इट्स द सेम एज शेडेड माइनस अनशेडेड। हमारे पास रेक्टेंगल माइनस सर्कल हो गया। सिमिलरली हमने उनके बाद फिर उसका एरिया का फॉर्मूला लिखा और हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ लिया और फिर पाई आर स्क्वायर लिया और फिर हमने फर्दर उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारी बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, उसने क्वेश्चन जो किया है वो कहा है कि कितने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीड चाहिए होंगे। तो हमें पता है एक बैग 5 मीटर स्क्वायर लेता है, तो 112.93 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने बैग से लेंगे, एक्स बैग से लेंगे। तो अब हम इनके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 112.93। अच्छा, ये कैलकुलेटर के अंदर स्टोर होगा, इसको डिलीट नहीं करना, जाके हमारे पास एक्यूरेट आंसर आए। मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इससे फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5, सो वी विल गेट द आंसर एज 22.58। सो अब डेफिनेटली अगर हम लोग 22 बैग्स लेंगे तो वो सारा कवर नहीं करेंगे। अगर हम लोग 23 बैग्स लेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर रहेगा, पर
सब कुछ कवर हो जाएगा. So we should say that you need 23 bags. That's it for question number 3. Okay, for question number 4, it says the diagram shows a road sign. If the triangle is to be painted white and the rest of the sign will be painted red, calculate the area covered by each color to 1 decimal place. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक तो ये 1 decimal place इज इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है. सेकंड चीज उसने कहा है कि मैंने इसको व्हाइट किया और इसको रेड सर्कल किया. अब आपने मुझे बताना है कि व्हाइट कितना पेंट लगेगा और रेड कितना पेंट लगेगा. उसके लिए सबसे पहले हम लोग व्हाइट को देखते हैं. व्हाइट हमारे पास एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है. ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा और वो आंसर आ गया 0.1 मीटर स्क्वायर. अब रेड के लिए रेड इज नॉट वेरी सिंपल बिकॉज रेड हमारे पास पूरा एक सर्कल नहीं है. पर सर्कल के अंदर ट्राइंगल जो है हम उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि कितना हमारे पास रेड कलर लगेगा. तो शेडेड माइनस अनशेडेड इसमें भी चलेगा. सर्कल माइनस ट्राइंगल हम लोग करेंगे, उसी के फॉर्मूलाज एरियाज लगाएंगे और फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. That's it for question number 4. It's very simple. Once you have an idea कि इसके अंदर रेड को shaded minus unshaded करना था, that was the only tricky thing in this, and that was all. Now for question number 5, I thought we can discuss it together because it's a little different because as there is no image or no visual representation over here. We have 16 identical circles. 16 circles हैं हमारे पास to be cut from a square sheet of fabric. So there's a square sheet of fabric जिसके अंदर से हमने 16 circles को cut करना है और उनकी sides है 0.4 meter long and we have to find the area of the leftover fabric to 2 decimal places if the circles are made as large as possible. So they haven't given us any radius or anything कि कितने हमारे सर्कल का रेडियस है या क्या, बट वी जस्ट हैव एन आइडिया. हमारे पास ये एक जो है एक स्क्वायर है. मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि हमें समझ आ जाए चीज़ों की कि कैसे हो रही हैं. हमें अब 16 सर्कल्स बनाने हैं, इक्वल से आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है तो वो हमें इक्वल बनाने हैं. तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 4 into 4 is 16, राइट. 4 into 4 is 16. सो इट्स जस्ट कि मैं अब मैंने इसके अंदर अरेंज करने हैं. तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ईजी अपने पास हेल्प करती हूँ कि मैं ना यहाँ पे इनको इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. ये मैंने एक विंडो सी बना दिया. अब इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअली मेरे पास हर एक या ये पूरा होना चाहिए नीट बनाती हूँ. मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसको नीट बनाने की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब मैंने एक स्क्वायर के अंदर कितने सर्कल्स ऐड करने हैं, 4. तो एक सेंटर यहाँ पे हो सकता है, एक का सेंटर यहाँ होगा, एक का सेंटर यहाँ होगा और एक का सेंटर यहाँ होगा. ये मिड पॉइंट होगा. सो सर्कल विल समथिंग लुक लाइक दिस. मैंने नीट नहीं हो रहे बट दे विल लुक अ लिटिल बिट लाइक दिस. ये सारे आइडेंटिकल होंगे और ये तो बहुत खराब बना आखिरी वाला, पर यू गेट एन आइडिया कि किस तरह से ये बन रहे होंगे. एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है. तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह हमने 16 सर्कल्स आइडेंटिकल सर्कल्स बनाने हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी. लेट्स से कि ये बहुत नीटली मैंने बनाए हैं. ओके, सो लाइक दिस हमारे पास अब ये आइडेंटिकल 16 सर्कल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं. उसने हमें ये बता दिया कि लेंथ जो है वो हमारी 0.4 मीटर्स है. सो दिस लेंथ हैज 0.4 and so is this length as well. This length is also 0.4 meters. अब हमारे पास हमने इस लेफ्ट ओवर फैब्रिक को देखना है. अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस एरिया को फाइंड करना है, इसको हम शेड कर देते हैं. तो अब हमने एक सर्कल का रेडियस, एक सर्कल का एरिया निकालना है और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास फुल सर्कल, फुल जो स्क्वायर का है, स्क्वायर का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, जो फैब्रिक है उसका एरिया निकाल लेते हैं. लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास फॉर्मूला है, या एल स्क्वायर भी हमारे पास फॉर्मूला है. तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 वी विल गेट 0.16 मीटर स्क्वायर. मीटर्स ही है, यस. तो हमारे पास मीटर्स में ये आंसर आ गया, एक फैब्रिक का आ गया. अब हम लोगों ने एक लार्जेस्ट, क्योंकि उसने कहा एज लार्ज एज पॉसिबल, लार्जेस्ट सर्कल रेडियस हमने निकालना है, ठीक है. हमें पता है कि 16 सर्कल्स हैं, हमने 4 में उनको ग्रिड में कट कर दिया. तो हमारे पास अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो अगर ये फुल 0.4 है, ठीक है, इस लेंथ को देखते हैं ना, लेंथ को. तो अगर ये पूरी लेंथ 0.4 है तो इतनी लेंथ, इतनी लेंथ, इतनी लेंथ, इतनी लेंथ. तो अगर मैं कहूँ कि ये वाली लेंथ 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है और ये 0.1 है,
तो ये 0.4 बन गई टोटल, क्योंकि एक का डायमीटर जो है वो 0.1 होगा, इसका डायमीटर 0.1 है, इसका डायमीटर 0.1 है, इसका डायमीटर 0.1 है, और इसका डायमीटर भी 0.1 है, और कंबाइन करेंगे तो 0.4 बन जाएगा। या इसको हम लोग सिंपली इस तरह भी कर सकते थे कि क्योंकि हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला लगा देते 0.4 डिवाइडेड बाय जितनी लेंथ में सर्कल्स आ रहे हैं, तो एक लेंथ में हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो हम 0.4 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास 0.1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितनी लेंथ है, टोटल लेंथ माइनस नंबर ऑफ सर्कल्स इन द लाइन, तो हमारे पास एक का डायमीटर आ गया। सो नाउ वी हैव अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज 0.1, एंड नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का हम लोग एरिया निकालेंगे जो कि हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, and we can put it in pi 0.1 divided by 2 whole square, and we will get answer as 0.0078 something, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक सर्कल का एरिया आया है, वन सर्कल। अब हमारे पास 16 सर्कल्स अगर हम लोगों ने निकालने हैं तो सिंपली इसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.0078, so we will get a value as 0.1256, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये था फुल एरिया, शेडेड एरिया, और ये है अनशेडेड एरिया। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि शेडेड माइनस अनशेडेड हमने करना होता है, यानी कि स्क्वायर माइनस 16 सर्कल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.16 माइनस 0.12566, so we will get answer as 0.03434 and so on। तो हमने लिखना किस में, 2 डेसिमल प्लेस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर स्क्वायर। That's it. That's the question to part 5, question 5. Alright, now we on to question number 6. That is, Anna and her friend usually order a large pizza to share. The large pizza has a diameter of 24 centimeter. Large pizza का size 24 centimeter है, and the small pizza is 12 centimeter. तो उन लोगों ने क्या किया कि दो पिज़्ज़ा स्मॉल ले लिया और एक लार्ज का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं किस में ज़्यादा अमाउंट है। तो हम एरिया लेंगे, पहले लार्ज वाले का एरिया लिया, पाई 24/2 होल स्क्वायर, और इसी तरह इनका हम लोगों ने पाई 12/2 होल स्क्वायर प्लस पाई 12/2 होल स्क्वायर। इस तरह से उनके एरियाज को ऐड करके हमारे पास ये डिस्टिंक्शन आ गई है। तो जब इसका एरिया का अकाउंट किया तो हमारे पास आया 226.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इसका एरिया हमारे पास आया 452.38 स्क्वायर। So that means one large pizza is much greater than two small pizzas. So it would be better to, and it would be economically better कि अगर आप 24 सेंटीमीटर का एक पिज़्ज़ा लो जो कि मे बी सस्ता भी होगा और उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा। So that's it for exercise 7.2. If you have any questions, any confusions, let me know.